अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर न्यू लेक्चर। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 6 इज, अब हमारे पास हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू -30। अब सिंपली हम क्या करते हैं कि इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई और बनाते हैं, इसका फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। तो एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, एक्सपेंडिंग बाय r1 as usual. So by doing this expanding we have 3 4 1 0 -1 4 x and 0 plus x -1 3 x and 1। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैट्रिक्स हमने किस तरह से लिखे हैं, ये बहुत अच्छे से क्लियर है, हमने कर लिए हुए एक दूसरे के लिए। So next 0 -4 -1 -0 0 -4x, no need to write this minus, -1 -3x is equals to -30. We have is -12 plus 4x minus x minus 3x square is equals to -30. What we have next is -3x square minus x, sorry, plus minus is minus, we have plus 3x minus 12 is equals to -30. By simplifying we have -3 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, -3 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 12 is equals to, sorry 12 not 12 4 equals to -30. अब x square minus x plus 4 is equals to -30 divided by -3. Minus is cancelled by this minus and we have a 10 here. So what we have left here is x square minus x plus 4 minus 10 is equals to 0. By simplifying we have minus x square minus x minus 6 is equals to 0. अब हमने बनाने हैं क्या, फैक्टर्स हम कैसे बनाते थे, एजिस को करना है हमने मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करने से हमारे पास सेंटर वैल्यू आनी चाहिए। 6 है, 6 into 1 is 6। अब मल्टीप्लाई करें, by multiplying we get a 6 and by add or subtract we get a -1. So we know the two factors that are 3 into 2 is 6 and 3 minus 3 plus 2 is equals to -1। अब हमें माइनस का साइन चाहिए तो इसलिए हमने जो बड़ी वैल्यू थी उसके साथ माइनस लगा लिया और छोटी के साथ प्लस लगा लिया। So we have x square minus 3x plus x minus 6 is equals to 0। इन दोनों इस वैल्यू में से क्या कॉमन आ गया, x minus 3 plus 2 x minus 3। कैसे हमें पता चलता है, कंफर्मेशन होती है कि फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। When we get this thing, अगर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में वैल्यू सेम होती है then we surely say that कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। We have x plus 2 here and x minus 3 here equals to 0. By simplifying we have x plus 2 is equals to 0 and x minus 3 is equals to 0. So from here we have two values of x, that is x is equals to -2 and x is equals to +3. So the final answer x is equals to -2 and 3। क्या था हमारे पास, सिंपल सा एक मैट्रिक्स गिवन था और हमने फाइंड करनी थी वैल्यू x की। सिंपली हमने सिंपल लाइंस पे डिटर्मिनेंट कंक्लूड किया है, देन वी फाइंड आउट द फैक्टर्स बनाए हैं और हमने वैल्यू फाइंड कर ली है x की। लेट्स सी द अदर क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वी हैव simple a matrix
अब इसका भी हमने x फाइंड करना है। सो क्या किया हमने, सबसे पहले एक्सपेंड कर लिया बाय व्हाट, बाय रो 1। So by expansion we have here is a 1, x plus 1 minus 2, 2 and x. Next minus x minus 1 and we have minus 1, 2, 2 and x. By leaving this and this plus 3 we have is minus 1, x plus 1, 2 and minus 2 equals to 0. By simplifying and finding out the determinant, we have x plus 1 minus 4 minus x minus 1 minus x minus 4, small bracket is okay here, plus 3, 2 minus 2 into x plus 1 equals to 0. X square plus x minus 4 minus x into minus x minus 4 minus 1 into minus x minus 4 plus 3, 2 minus 2x plus minus 2 equals to 0. X square plus x minus 4 minus minus plus x square minus minus plus 4x plus x and plus 4 plus 2 is cancelled by this 2 and we have a minus 6x is equals to 0. 2x square. Next is, let's see x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x. 6x plus minus cancelled, sorry, minus 6x is equals to 0. अब हमारे पास हम देखते हैं कि क्या हमने ये सारी वैल्यूज ठीक लिखी हैं। वी हैव 1x square and 1x square, 2x square, 1, let's check out the x's, 1, 1, 2, 3, 4, 4 plus 1, 5 and plus 1, 6x यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ पे प्लस हमारे पास था एक प्लस, तो यहाँ पे आ जाना था x माइनस का, दिस x is cancelled by this x. We have 4x minus 6x, 2x square minus 2x is equals to 0. By taking common 2x, we have x minus 1 here equals to 0, 2x is equals to 0 and x minus 1 is equals to 0. From here we have x is equals to 1 and here x is equals to 0. So the final x is equals to 0 and 1. So the next question is question number 7, that is evaluate the following determinants. अब हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है 4/4 का, we have 4 rows and 4 columns. जब एक बड़ा डिटर्मिनेंट आता है ना n greater than equals to 3, जब 3 से ग्रेटर देन ऑर्डर का मैट्रिक्स आया था डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ा था, रो एंड कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ते थे ताकि हम इसको इजीली जस्टिफाइड करके हर स्टेप को इसका डिटर्मिनेंट कंक्लूड कर सके विदाउट एनी मिस्टेक। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, इन ऑपरेशंस को यूज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन पे बना रहे थे एक 1 एंड देन
उसके बाद किसी भी एक रो को या एक कॉलम को, चले हम रो को ही चूज कर लेते हैं, तो रो को हमने फर्स्ट पोजीशन पे बनाना है 1 और बाकी सब सारी जो नीचे की एंटिटीज है उनको हमने करना है 0। लो लेट्स डूइंग दिस। अब मेन फोकस हमारा है कॉलम 1 पे कि हमने कॉलम 1 की फर्स्ट पोजीशन पे 1 लेके आना है और बाकी सारी एंटिटीज जो नीचे गिवन है उन सबको 0 करना है। तो अब यहाँ पे 1 किधर मौजूद है, R3 में। R3 में एक 1 है, उसको हमने लेके जाना है R1 में। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटरचेंज हम कर सकते हैं दो रोज को या दो कॉलम को। तो हम करते हैं इंटरचेंजिंग R1 एंड R3। जब इंटरचेंज किया तो सिंपली बाहर आ गया एक माइनस का साइन, तो जस्टिफाई दिस स्टेप एंड हम इजीली इसको लिख सकते हैं अब ऐसे, विदाउट एनी डाउट। 2, 5, 0 and 3, row 2 remains on its own position and now row 1 become row 3. ठीक हो गया? क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंटरचेंज कर दी रो 1 और रो 3 को। प्लीज इग्नोर दिस रूस्टर। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने जीरोस बनाने हैं इधर। अब देखो यहाँ पे 2 है, 3 एंड 4 है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने फिक्स कर लेने हैं इस रो को। रो 1 रिमेन्स फिक्स, रो 1 क्या हो जाएगी, फिक्स। अब रो 2 है हमारे पास 2, यहाँ पे 2 है, इसको हमने R2 में हमारे पास क्या है 2, इसको अब हमने 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ R1, मतलब -2 ऑफ 1 विच इक्वल टू 0। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब अपने स्टेप्स को जस्टिफाइड करते जाते हैं और लिखते जाते हैं 1, 2, -3 एंड 5 बाय। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले R2 - 2R1। Similarly, here we have is R3 - 3 times of R1, R4 - 4 times of R1. So we have 0 here, here again 0 and again 0. अब यहाँ पे आ जाए, we have 5। एक रो को सिंप्लीफाई कराती हूँ आपके सामने और बाकी फिर जल्दी से डायरेक्ट कर लेते हैं हम। We have 5 here, -2 times of 2. We have 5 - 4, that is equals to 1. Next, what we have is 1. Next is 4 - 2 times of 2 is equals, 4 - 3 times of 2 is equals to 4 - 6, which is equals to -2. Have here is a -2. Next, 1 times of 2 we have 4 into 2 is 8, 1 minus 8 is equals to -7, -7 here. Okay, next, अब ये हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। Here we have the values of 6, 11, 10, -7, -8 and -14. So this is the reduced form of the matrix. अब हम क्या करते हैं, सिंपली करते हैं by expanding by column 1. अब column 1 के अकॉर्डिंग जब एक्सपैंड किया तो what we have here is a 1, ये वाला माइनस साइन, 1, 6, -7, -2, 11, -8, -7, 10, -14 इट इक्वल्स टू 0। अब क्या हुआ, 4x4 का मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया किसमें, 3x3 में। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं बाय रो 1 के। -1 तो ये बाहर मौजूद है, हमने एक्सपैंड किया, 1, 11, -8, 10 एंड -14, -6, -2, -8, -7, -14. Next, plus into -7,
we have minus 2, 11, minus 7 and 10 by simplifying this equals to 0. So we have a minus sign here, and by simplifying this matrices we have 10 into minus 14 is 11 into minus 14 is minus 154, plus minus is plus 80. Next is minus 6 into minus 2 into 4, 14, 28. Minus is plus. Minus plus and plus minus 8 into 7, 56. We have minus 7 here and minus 20, minus plus 77. So equals to 0. Minus 154 plus 180 is minus 74. 28 minus 56 is minus 28. Minus 7 into minus 20 plus 77 is 57. Now we have here is minus. अब इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है डेट इज 305. हमारे पास क्वेश्चन कि हमने फाइंड आउट करना था इसका डिटर्मिनेंट. तो हमने क्या किया, 4x4 मैट्रिक्स को रिड्यूस किया 3x3 मैट्रिक्स में एंड देन 3x3 की सिंपल एक्सपेंशन करके हमारे पास आंसर आ गया 305. So क्वेश्चन नंबर 7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो ऑल आर ऑफ द सेम टाइप. सो ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 7 के जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सब एक ही टाइप के हैं. तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज शो दैट एंड अ मैट्रिक्स. अब देखें यहाँ पे सब पोजिशन पे 1 है, फर्स्ट पोजिशन पे आ गया है x. तो उसका मतलब है इस x की वजह से हम 0 नहीं बना पाएंगे. तो क्या करते हैं हम कि आंसर पे फोकस करते हैं क्योंकि अब आंसर हमें गिवन है तो हमने आंसर पे फोकस करना है कि आखिर हमने सॉल्व करके लाना क्या है. दैट इज x प्लस 3 एंड x माइनस 1 होल क्यूब. सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं x प्लस 3. कैसे आ जाता है आप देखें 1 प्लस 1 2 प्लस 1 इज 3. अगर इन तीनों कॉलम्स को ऐड अप करके इसमें ऐड करते हैं देन वी हैव एन x प्लस 3 हियर, x प्लस 3 एंड ऑल द कॉलम 1 बिकम x प्लस 3. सो सिंपली हम क्या करते हैं अपने स्टेप को करते हैं जस्टिफाई और करते हैं इसको सॉल्व. हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. is x plus 1 plus 1 plus 1 x plus 1 plus 1 plus 1 1 plus x plus 1 1 plus 1 plus 1 plus x. The remaining things remain same 1 1 and 1 x 1 1 1 1 1 x 1 1 1 and x. तो क्या किया हमने क्या किया बाय कॉलम 1 को किया चेंज और कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 को ऐड करके पकड़ के अनचेंज्ड रखते हुए कॉलम 1 में ऐड कर दिया. सो वी हैव x plus 3 here, x plus 3 here and again an x plus 3. 1 x 1 oh sorry we have another x plus 3 1 1 1 x and 1 1 1 1 and x. तो बाय नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं किसको x plus 3 को फ्रॉम वेयर फ्रॉम कॉलम 1. वी हैव x plus 3 here and inside is 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x and 1 1 1 1 and x. अब हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं
क्योंकि अब यहाँ पे कोई x की टेंशन नहीं है, इसलिए हम इस कॉलम को इसको फिक्स करते हुए इन तीनों को जीरो कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। बाय कैसे? R2 minus R1, R3 minus R1, R4 minus R1. So R1 remains unchanged as 1, 1, 1 and 1. We have 0, 0 and 0 here. X minus 1, 1 minus 1, 0, 1 minus 1, 0. 1 minus 1 is 0, x minus 1 here and again a 0. 0, 0, x minus 1. Now see the next. अब क्या करना है अब हमने कोशिश करते हैं इस 4x4 कॉलम को रिड्यूस कर लें किसमें 3x3 में। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं इसको। एक्सपेंडिंग, अब किसको एक्सपैंड करने लगे हम? बाय कॉलम 1। कॉलम 1 के अकॉर्डिंग किया इसको एक्सपैंड। वी हैव हियर इज अ 1, x minus 1, 0, 0, 0, x minus 1 and 0, 0, 0, x minus 1। अब ये तो हो गया एक्सपैंड। अब हमने क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये आ गया मैट्रिक्स 3x3 का। तो हम अब इसमें से क्या करने की कोशिश करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और इसको अब एक्सपैंड करते हैं। कॉलम 1 के अकॉर्डिंग तो हमने एक्सपैंड कर लिया और हमारे पास बाहर कॉमन में मौजूद था x plus 3 here, x plus 3 here, we have x plus 3। अब दोबारा इसको हमने एक्सपैंड करते हैं और अपने स्टेप को जस्टिफाई करते हैं एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 1 अगेन। सो हमारे पास क्या आ गया, x minus 1, x minus 1, 0, 0, x minus 1, minus 0 plus 0. No need to write anything. We have x plus 3 here, x minus 1, x minus 1 and x minus 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। So how many times x minus 1 we have is 1, 2 and 3. X plus 3 and x minus 1, 1, 2 and 3 cube. So this is what we have to find. So हमने क्या किया, 4x4 मैट्रिक्स को रिड्यूस किया 3x3 मैट्रिक्स में और फिर उस 3x3 मैट्रिक्स की कर दी एक्सपेंशन और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आ गया।